নমস্কার, আপনারা দেখছেন আপনার খবর। আমি বিনয় ভরদ্বাজ। আর আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ছট পুজো। আর এই ছট পুজোতে হিন্দি বেল্ট, বিশেষ করে এই হুকুমচাঁদ জুট মিল এলাকায় শ্রমিকদের উপরে যে তাদের মনে যে আশা, তাদের মনে যে মানে আনন্দ, সেভাবে উৎসাহ তেমনভাবে কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে না। কারণ যে প্রত্যেকের মুখেই কিন্তু একটা সবসময় ভয় ভীতি কাজ করছে। জুট মিলের সামনে রয়েছে হুকুমচাঁদ জুট মিল। হুকুমচাঁদ জুট মিলের শ্রমিকদের উপরে যে অমানবিক অত্যাচার, এই অমানবিক অত্যাচারের কাহিনী কদিন আগেও আমরা দেখেছি। আমরা লাগাতার এখানে ছিলাম। এই অমানবিক অত্যাচারের ফলে কদিন 8 দিন প্রায় মিল বন্ধ ছিল। तमाम ইউনিয়ন নেতারা, 8খানা এখানে ইউনিয়ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা আছেন, তারা হেনস্থ হয়ে গেছিলেন মিল খোলার জন্য। কারণ তারা মিলে পোস্টার করেছিলেন যে শ্রমিকরা তাদের কথা নাকি শুনছে না। এই শ্রমিক নেতারা, 8খানা ইউনিয়নের নেতারা বলছেন শ্রমিকরা তাদের কথা শুনছেন না। তারা নিজের করে ডিসিশন নিচ্ছেন, নিজের মতন করে মিল বন্ধ করে রেখেছেন। তবে মিল ম্যানেজমেন্ট কেন তাদের সাথে সহযোগিতা করছে না সে কথা একবারও বলেননি। তারা বলছেন মিল খুলছে না কেন, তখন বলেছিলেন, তারা বলেছিলেন শ্রমিক নেতারা বলেছিলেন শ্রমিকরা তাদের কথা শুনছেন না। অর্থাৎ তারা নিজেই মেনে নিয়েছিলেন যে তারা শ্রমিকের নেতা নন, তারা মিল মালিকের দালাল। তারা পোস্টার দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় আমরা পোস্টার দেখেছিলাম। আবার আপনাদের কাছে আমরা পোস্টার দেখাবো। 8টি ইউনিয়ন রয়েছে, শ্রমিক ইউনিয়ন বলে তারা, নেতা বলে তারাই বলছে শ্রমিকরা তাদের কথা শুনে না। অবশেষে মিল খুলেছিল। শ্রমিকদের একটাই দাবি ছিল, মিল ম্যানেজমেন্টের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। আর এই অত্যাচার বন্ধ করতে গিয়ে শ্রমিকরা যখন ভিড়ে গেছিল, রুখে দাঁড়িয়েছিল, মিল ম্যানেজমেন্ট কয়েকজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দেয়। আর সেই এফআইআর জন্যই 3 জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। এই 3 জন শ্রমিককে গ্রেফতারের পর থেকে কিন্তু লাগাতার মিল বন্ধ হয়ে যায়। সংগঠিতভাবে শ্রমিকরা লড়াই শুরু করেন। আজ লাগাতার এই বন্ধের পর শ্রমিক নেতা, বিশেষ করে তৃণমূলের যে ক্ষমতায় আছে তার বিধায়ক, তার নেতা, তার আইএনটিটিইউসির সভাপতি সোমনাথ ছুটে এসেছিলেন। শ্রমিকদের বলেছিলেন আপনারা মিল খুলুন, আমি কথা দিচ্ছি। অর্থাৎ সোমনাথ শ্যাম বলেছিলেন, আমাদের এই ক্যামেরাতেই দেখিয়েছিলাম, যে এই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর হয়েছে তা মুকুব করে নেওয়া হয়, তুলে নেওয়া হবে। প্রশাসন যে এফআইআর করেছে রিটার্ন নিয়ে নেবে, তারা এফআরটি করে দেবে, কেস রফা দফা হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। কথা দিয়ে কথা রাখেননি শ্রমিক নেতারা। এই সোমনাথ শ্যাম, আইএনটিটিইউসি সভাপতি, এখানকার যে সাধারণ সম্পাদক কমল অধিকারী, তারা এসে বড় বড় কথা বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। সকলের সামনে বলেছিলেন শ্রমিকদের উপরে যে মামলা হয়েছে সেটা তুলে নেওয়া হবে, প্রশাসন ফিরিয়ে নেবে। আদৌ তা হয়নি। তাই আমরা এসছি, আবার এই মিল প্রাঙ্গণে এসছি, মিলের সামনে এসছি কথা বলতে সেই শ্রমিকদের সাথে যারা শুনেছিল, তখন ছিল, তাদেরকে যে আশ্বাসন ভরসা দেওয়া হয়েছিল তাদের সাথে কথা বলেছিলাম। তাদের সাথে আপনাদের কি বলেছিল, আপনারা শুনেছিলেন? আপনি তো জেলে ছিলেন। আমি জেলে ছিলাম। আর সব থেকে আগে আমি মিডিয়াকে ধন্যবাদ করব, কেন কি হিন্দিতে বললে ভালো হবে? हाँ, बोलिए। सबसे आगे मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूं, मीडिया मैंने अब तक तो था अब तक न्यूज को, इसलिए कि ये जो मजदूरों का जो आवाज था वो ऊपर तक पहुंचाया, सबको जनाया। और हम लोग तो अंदर थे, मैनेजमेंट हम लोग के साथ में जो अन्याय किया, आज धर लीजिए हर एक मजदूर के ऊपर शोषण हो रहा है। बाबू लोग धक्का दे देता है, काम से बैठा देता है। 100% प्रोटेक्शन अपना वो लोग 100% देता है मजदूर, फिर भी उसके साथ में ये लोग अन्याय करता है, किसी को धक्का दे देता है, पैसा मांगता है। आज 12 से 13 हजार रुपया हम लोग को मंथली मिलता है। उसमें बाबू लोग क्या करता है कि मजदूर को जबरदस्ती बैठाकर जो आपका आज प्रोडक्शन कम है, लेकिन वो नहीं देखता है कि ब्रेक डाउन मशीन है, उसका सूता खराब है, नली खराब है, ये नहीं देखता है। उसको बैठा देता है, उसको मजबूर कर देता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। अर्थात आपको काम करने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है। हाँ अवश्य, यहाँ बहुत सारे ऐसा मजदूर हैं जो पैसा देकर काम करते हैं। अब मैनेजमेंट इतना छूट दे रखा है यहाँ पर बाबू लोगों की, मजदूर के गर्दन में हाथ लगा के वो लोग धक्का दे के निकाल देता है मिल से। बोलता है कि ज्यादा अगर बोलेगा तो मिल से तुमको बाहर निकलवा देंगे। और
तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो लोग तो जानता है, सब खरीद के रखा है। मैं सब खरीद के रखा है कि मतलब क्या बने? प्रशासन बिका हुआ है, पुलिस बिका हुआ है, नेता बिका हुआ है। पुलिस प्रशासन से लेकर नेता तक जितना भी है यहाँ, तो जैसे कि आप बोले हैं यूनियन, यहाँ 8 यूनियन है। 8 यूनियन रहने के बावजूद यहाँ यूनियन कोई मजदूर का भलाई नहीं करता है। यहाँ भी धंधा होता है। ये लोग डिपार्ट से बैठाते हैं तो लेबर ऑफिस में जाता है, लेबर ऑफिस में केस जाता है तो आपको वो लोग नहीं सुनेगा। जब तक यूनियन वाला वहाँ नहीं जाएगा, वो कुछ धंधा नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक यूनियन वालों को पॉकेट में पैसा नहीं डाला, पॉकेट में पैसा होना चाहिए, जाएगा तभी आपका काम होगा। ऐसा ये मिल में चलता है। मैनेजमेंट इतना ज्यादा छूट देकर रखा है, यूनियन वाला लोग जितना कमाना है आप लोग कमाइए, हमारा तो काम हो रहा है। आज एक हफ्ता से, आज देखिए छठ पूजा है, दिवाली है। मैं सभी मजदूर साथी को दिवाली और छठ पूजा को धन्यवाद करना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं कि आज बताइए, एक हफ्ता से हम लोग को छठ पूजा दिवाली जो है, एक हफ्ता से बीमा नहीं मिल रहा है। बीमा का लेकर मैंने 40 से 50 को मशीन बंद है। कल हम लोग ने प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ा, बोला कि आप बीमा दीजिए। आज नया मशीन में बीमा कहाँ से मिलता है आपको, सूता कहाँ से मिलता है? हम लोग पुराना मशीन के लिए आपके पास बीमा नहीं है, सूता नहीं है। वो बोलते हैं कि उधर स्पिनर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को सूता कम मिल रहा है। मतलब अगर मिल मैनेजमेंट का गाफिलती भी कुछ होगा तो आप ही लोग के ऊपर लाद दिया जाए। हाँ, मिल में अगर ये लोग ऐसा कर दिया है, कोई बात होता है तो थाना में डायरेक्ट फोन कर देता है। थाना वाला लोग हम लोग को फोन करके बुलाता है जी आप लोग मिल में झमेला करते हैं। आज अगर हम लोग मैनेजमेंट के विरोध में आवाज उठाते हैं कोई गलत के खिलाफ, तो वहाँ हम लोग आवाज दबाने का चेष्टा किया जाता है। अवश्य मिलेर बिरुद्धे मैनेजमेंटेर बिरुद्धे आवाज तुलले किन्तु आवाजके दम्भ बंद करे देওয়ার চেষ্টা হয়। পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখানো হয়, মামলা দেওয়া হয়, বারে বারে কিন্তু পুলিশকে দিয়ে थ्रेट करा है, तादेरके भुयो मामला फांसी देওয়ার से। अनेक श्रमिक आছেন, आप लोग यहाँ पर तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, क्या अवस्था है? सचमुच क्या मिल मैनेजमेंट का अत्याचार चल रहा है? चल रहा है। तो कैसा अत्याचार चल रहा है? कोई जुल्म चल रहा है, जिसी को बैठा दो, ये सब। हमने सुना है कि यहाँ पर हाजिरा देने के लिए भी पैसा लगता है, काम करने के लिए भी पैसा लगता है। लगता है तो देना पड़ता है, जबरदस्ती बोलता है, उसको मजबूर हो जाता है तब देता है। मैंने पैसा देकर ही काम करना पड़ेगा। मैंने कट मनी का पूरा भीतर में धंधा अच्छा से चल रहा है। ये तो चल रहा है। नहीं, कट मनी का धंधा चल रहा है क्या दादा? हाँ, चल रहा है। किस तरह का कट मनी, क्या क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। पैसा दे करके बोलता है लोग काम करो, पैसा नहीं मिलने से तो बैठा दो, काम नहीं देगा लोग, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो आपको मालूम होगा, वो तृणमूल के सभापति जो हैं सोमनाथ आके बोल गए थे, आपको याद है कि ना? क्या बोल के गए? बहुत बोल के गए थे कि सब कुछ होगा, सब फैसिलिटी मिलेगा। कहाँ कुछ मिल रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिला। सोमनाथ श्याम साहब जो हैं INTT के जिला के सभापति हैं, शायद सुन रहे होंगे। मैं क्या चाहता हूं कि आप सुने, श्रमिकों को सुने। आपको फुर्सत न होती होगी, आपको यहाँ आने का समय न मिलता होगा, आप श्रमिकों को सुने, अब तक के माध्यम से ही सुने। कम से कम आपके कानों तक ये बात जाए कि आप जो लोगों को भरोसा दे के गए थे, वो भरोसा पूरा नहीं हुआ है। लोग चाहते हैं आप अपनी बात को रखें, अपने भरोसे को कायम रखें, और ये लोगों को जो बरगलाने का काम है, मिल मैनेजमेंट की जो दलाली का काम है, मैंने जो श्रमिक यूनियन कर रहे हैं उसको कम से कम बंद करें। और ज्यादा ही है, आप मिल में हैं। 5 महीना से हम लोगों को काम नहीं है, बैठा दिया है। बोलता है कि जो सोमनाथ शाम आया, कमल अधिकारी आया, राजू सहनी आया, सब मीटिंग करके बोला है कि सबको होगा। की बोले छिलो जो सबर काज हो, हम लोगों को तो बैठा दिया, दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिया, जिन को दूसरा डिपार्टमेंट में भेजा है, सबको हटा दिया है। हम लोग कुछ आदमी गया नहीं, बोला रहा कि जिन आदमी नहीं गया सबको काम मिलेगा। तो 6.5 महीने हो गया, पूरा तो भूखा है। कौन नेता आया है? सब तो मीटिंग करके बोल के गया कि सबको होगा। तो नेता लोग आता है, बोल के चल जाता है। हाँ, नेता लोग आता है, बोल के चल जाता है, मैनेजमेंट से कुछ खाता है, शायद ऐसा बोल के चल जाता है। इसलिए तो कोई वादा पूरा नहीं किया आज तक। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहता है हम लोग शांति से काम करेगा। हम लोग तो दिया ही नहीं, कैसे करेगा? अवश्य कैसे करेंगे, ये प्रश्न होते हैं। नेता आते हैं, अपना जेब गर्म करते हैं और चले जाते हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर मानते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, माइक बनता है, भीड़ लगता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। लगातार श्रमिक बोल रहे हैं। और एक दादा, अरे आप तो पहले भी आए थे। हाँ, तो क्या मैनेजमेंट तो सामने, एक तो बड़ा यूनियन का 8 यूनियन थे और बड़े नेता लोग आए थे, बोल के गए थे सब कुछ होगा। मामला क्या विड्रॉ हो गया?
होगी, कुछ हुआ नहीं। हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं, 5 महीना 6 महीना हो गया, 18 मई से बैठाया से अभी तक बैठाए हैं। मीडिया वाला अशोक यादव बोला जे सबको काम मिलेगा छाईगदा पर, लेकिन किसी को काम नहीं मिला। 26 आदमी को बाहर किया, 26 आदमी में से किसी को काम नहीं वहाँ पर दिया। ठीक है, कुछ आदमी ये डिपार्ट में गया है, बाकी बात जो और आदमी है जो इधर उधर ही काम करता है उस जगह पर काम नहीं देता है। तो ये जो बोल के गए थे लोग कि काम नहीं होगा, काम का हेल्प मिलेगा, आप लोग क्या इस मिल में अत्याचार सचमुच चल रहा है? वो तो सब जगह चल रहा है, मिले में कहा है, सब जगह चल रहा है। नहीं, पुलिस से नेता लोग धमकाता है। अब तो ये हमको मालूम नहीं है, पुलिस लोग तो थोड़ी धमकाएगा, भीतर में बाबू लोग धमकाता है। अब सुन रहे हैं आप लोग, भीतर में बाबू लोग धमकाता है और बात न मानने पर पुलिस की धमकी मिलती है। हाँ बोलिए। 4 महीना दिन हम लोग को बैठा हो गया, आज तक कोई खबर नहीं। बोलता है उस डिपार्ट में जाओ, उस डिपार्ट में जाओ। कुछ आदमी जो गया है वो सही से काम नहीं कर रहा है, 2 दिन 3 दिन काम कर रहा है, बैठा हुआ है। सबके घर में परिवार सर संसार है। ये परिवार में जो इतना पूजा पाठ जो हुआ है, कैसे आदमी गुजरा है वो उसको मालूम नहीं है। ठीक है, 4-5 महीना दिन से एक दिन भी काम हम लोग नहीं किया है। आप लोग को बैठा के रखा, हम लोग को बैठा के रखा। आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है श्रमिक लोग झूठ बोल रहा है ना ठीक बोल रहा है? ঠিক না না ওরা কি বলছে আমি জানি না না ঠিক, আপনি ওটা মিথ্যে কথা বলছে, কি জানি আমি জানি না। না, তা আপনি শুনছেন তো? শুনছি সবাই মানে বলছে। কি শুনছেন, কি শুনলেন? ওই সব ওদের আমি না, না। কাজ করছি এইটাই। হ্যাঁ না, না, ওই তো কি শুনছেন, কি শুনছেন, আমি বসেছি না কাজ কি শুনছেন? হ্যাঁ আসুন, কি শুনছেন, কি শুনছেন? শুনছি হ্যাঁ, ওদের কি প্রবলেম আছে সেটা বলছে। মিল ম্যানেজমেন্ট তো শুনছে, আমরা তো এটা লাইভ চলছে। হ্যাঁ, আপনার মনে হচ্ছে এরা ঠিক বলছে না মিথ্যে কথা বলছে? সেটা বলতে পারবো না, আমরা তো মানে আপনি এটাও জানেন না? না না খবর মানে আপনি কি তাহলে শুধু গেটে দায়িত্ব থাকে? হ্যাঁ গেটের দায়িত্ব। মানে গেটে ঢুকতে যখন মালিক বলে দেয় এদেরকে বার করে দেয়, আপনি বার করে দেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই এখন আদেশ যা হবে তাই তো করবো। অবশ্যই শুনছেন, ইনি সিকিউরিটি, ইনি বলছেন মিল ম্যানেজমেন্ট যখন বলে এদের বের করে দাও, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন, এনার ওইটুকু কাজ। হ্যাঁ বলুন। बोलছি আমি 5 महीना 4 महीना बाद मिल में ढूका, बाबू के साथ बातचीत किया, राजू मिस्त्री आया, बोलते अभी तुम मिल से बाहर चला जाओ। अच्छा, हाँ, इस मिल में हम 27 बरस सेवा दिए हैं, 29 बरस से काम किए हैं। हाँ, 27 बरस हमारा फार्म का हो गया। मिल में एक दिन गए हैं तो राजू मिस्त्री आकर के हमको बोलता है कि अभी मिल से आप बाहर चला जाइए। ठीक है, पर्सनल मैनेजर है। तो हम बोले ठीक है, हम चले जाते हैं। हम बाबू से भेंट करने गए थे, कुछ बातचीत करने गए थे, लेकिन आकर के बोला हमको बाहर चला जाए। मतलब हम बाहर चले गए। मतलब जो लोग भी प्रतिबाद करते हैं श्रमिकों के अत्याचार का, उनको मिल से बाहर निकाले। हाँ, অবশ্যই শুনতে পাচ্ছেন, যারাই প্রতিবাদ করে তাদেরকে ওই সিকিউরিটি লাগিয়ে মিল থেকে ধাক্কা দিয়ে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়, তাদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করা হয়। অত্যাচার চলছে, চরম অত্যাচার। শুধু এই অত্যাচার বললে হবে না, চরম অত্যাচার। আর সবচেয়ে বড়, এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিলের জায়গা ছিল, এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিল এক সময় ছিল, কিন্তু এই মিলে একটাও পার্মানেন্ট ছিল না। প্রায় 10,000 শ্রমিক কাজ করে, একটা পার্মানেন্ট নয়, পুরোটাই বেআইনি ভাবে। আপাতত হাইকোর্টের নির্দেশে কয়েকজনকে নাকি পার্মানেন্ট করেছে, তার মধ্যেও নাকি কয়েকজন মারা গেছে, তাকেও পার্মানেন্ট করে দেওয়া হচ্ছে, এরকম একটা অভিযোগ উঠছে। যে পার্মানেন্ট করেছে, যে মারা গেছে ওর পার্মানেন্ট হয়ে গেছে, আমাদেরকে কাজ দিচ্ছে না, ভাউচারে চালাচ্ছে, ওই রুম ভাউচারে চালাচ্ছে। क्या? हाँ बोलिए। जो रिटायरमेंट हुआ उसका भी परमानेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद परमानेंट हो गया। हाँ मतलब कोर्ट को भी धोखा दिया जा रहा है। मैंने दिखा दिया, ऑटोमेटिक धोखा दिया जा रहा है। इतना रिपोर्ट दे दिया परमानेंट कि किया हमको permanent है। किया। कुछ आदमी मर गया, कुछ आदमी भाग गया है, लेकिन उसका परमानेंट हो गया। उसका नाम नहीं कटा है। हम लोग 3 महीना काम नहीं करेंगे तो बोलेगा कि ये नाम आपको कट गया। जो दुनिया से रिटायर हो गया उसको परमानेंट हो गया ये साल में, मैं जो मर गया और 3 साल पहले मर गया उसका भी परमानेंट। उसका भी পার্মানেন্ট हो गया। আপনি নিশ্চয়ই যারা দেখছেন, এই আপনার যারা দেখছেন তারা বুঝতে পারছেন যে কতটা যে ভাওতাবাজি চলছে। মানে দুধে জল মেশানো না, জলেই জল, একটু দুধ মিশিয়ে ব্যাপারটাকে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আর নেতারা মোটা টাকা মাইনা নিয়ে নাকি মোটা একটা কাট মানি নিয়েই চলে যাচ্ছেন। এমন ভাবে অত্যাচার চলছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে, পার্মানেন্ট করা হয়েছে তাও আবার কোর্টের আদেশে, তাতেও আবার জল মেশানো হয়েছে। আমি বলছি না, শ্রমিকরাই বলছেন। যারা মারা গেছে তাদেরও পার্মানেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, যারা কাজ করে না তারা পার্মানেন্ট হয়ে গেছেন।
যারা এখানে নেই তাদের নাম খুঁজে খুঁজে পার্মানেন্ট লিস্ট তৈরি করা আছে। ভাওতাবাজি, এই ভাওতাবাজি কতদিন চলবে? তবে শ্রমিকরা কিন্তু একাত্তা হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই ভাওতাবাজি বেশি দিন চলবে না, এই ভাওতাবাজি বেশি দিন চলবে না। গেটে দাঁড়িয়েছিলাম কেলা কিনছিলাম ছট পূজার জন্য, ওই এক ধর্মান এসে আমার ফটো তুললো কালকে। ফটো তুললো, আমি বললাম, ঠিক আছে আমি চ্যানেল पर চলেছি, ফটো তুলুক, কি করবে যে করুক করবে, মানে ফটো তুলে পুলিশ তুলে मतलब কি যে ধমকি দেবে, কি করবে না করবে ওরাই জানবে। মানে আপনার মনে হচ্ছে হুমকি দেবে? ধমকি দেবে, এই জন্য আমাকে তো, আমি কেলা কিনতে গিয়েছে, ও এসে আমাকে ফটো তুললো ছাইগাদাতে কালকে। অবশ্যই বুঝতে পারছেন দর্শকরা, আমি বলছি মুখ্যমন্ত্রী তো অন্তত ব্যাপারটা বুঝুন, এদের ব্যথাটা তো অন্তত বুঝবেন। লেবার মিনিস্টার আছেন, তিনি তো একটু বুঝবেন। বিভিন্ন পলিটিক্যাল নেতারা আছেন, আপনারা বুঝুন কি কোন অত্যাচারে রয়েছেন এখানকার শ্রমিক। ছট পুজোর প্রসাদ দিতে গেলেও তাদের ছবি তুলে মামলা ফাঁসি দেওয়ার একটা ভয় দেখানো হচ্ছে, এমন অত্যাচার চলছে। আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল, মামলা কি হয়েছে, মামলার অবস্থা কি যদি বলেন? मामला अभी बोलो। मामला तो बोला गया था कि आप लोग का विड्रॉ हो गया। कुछ नहीं हुआ है अभी तक, 4 महीना होने चला है। इसके पहले तो आप यहाँ आए थे, सोमनाथ शाम जी भी आए थे। तो सोमनाथ शाम जी आपसे सबसे श्रमिक से यहाँ वादा करके गए थे कि 1 महीना के अंदर में केस हटा लिया जाएगा। हमको मैनेजमेंट से बात हो चुका है, आप गवाह है, यहाँ का श्रमिक गवाह है। लेकिन अभी तक ऐसा मैंने मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ ऐसा सुनने को भी नहीं मिला या देखने को भी नहीं मिला। एक दिन का बात है कि हम लोग पर्सनल मैनेजर के पास फोन किए थे, राजू महेश्वरी नाम है उनका। तो उनके पास फोन किए थे, सर ये जो केस है हम लोग को आप लोग हटाइए। तो वो बोलने लगे कि हमको धमकी दे रहे हैं। तो बोली नहीं सर, आपको काहे धमकी देंगे, हम धमकी दे के रहेंगे कहाँ। तो बोले नहीं आप हमको धमकी दे रहे हैं, मैंने जबरदस्ती आपको जबरदस्ती। इसके बाद वो क्या किए, थाना में फोन कर दिए। थाना में फोन किए, थाना हम लोग को बुलाया, हम लोग गए थे वहाँ पर। तो हम लोग क्या किए थे, रिकॉर्डिंग कर लिए थे। हम लोग जानते थे कि ये लोग हो सकता है हम लोग को फंसाने का चेष्टा करेगा। तो हम लोग रिकॉर्डिंग करके ले गए वहाँ पर, दिखाए जो सर देखिए यही सब बात हुआ है, ऐसा कुछ कोई धमकी नहीं दिया गया है। सिर्फ हम बोले हैं जो सर आप लोग थोड़ा ऊपर माहौल में बात करके केस को आप लोग हटवाइए। इसलिए हम लोग तो मजदूर है, हम लोग को बार बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है कोर्ट में, बहुत सारा लॉस होता है। इतना ही बात बोलने के बाद में वो थाना में फोन किया और थाना हमको बुलाया। हम क्या मैंने हमारे 4 साथी लोग को बुलाया, हम लोग वहाँ पर गए थे। जाने के बाद वो बोलने लगे कि आप लोग धमकी दिए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग था, हम बोले कि सर आप देख लीजिए, अगर इसमें किसी प्रकार का आपको धमकी यदि समझ में आ रहा है तो हम लोग को अंदर कर दीजिए। लेकिन जब ऑफिसर देखे बड़ा बाबू तो बोले कि नहीं इसमें तो ऐसा कुछ बात तो नहीं। फिर आप लोग क्यों ने पलटा मामला किया उनके खिलाफ कि फर्जी मामला करने के धमका रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आपको बोलकर हम गए हैं, यहाँ तो सब लोग बिका हुआ है। ये मजदूर, आम मजदूर को बात कौन सुनता है? अगर कोई बात लेके जाएंगे तो वो सुनता ही नहीं है, बोलता है जो नहीं ये गलत आप बोल रहे हैं। हम लोग का खमाता नहीं है मैनेजमेंट से लड़ने का। हम लोग साधारण आदमी है, कमाए खाने वाला। आज अगर नहीं कमाएंगे तो कल हमको हमारा बाल बच्चा का खाना नहीं मिलेगा। हम लोग केस लड़ पाएंगे, किसी से झगड़ा कर पाएंगे, हम लोग का वो खमाता नहीं है सर। आप पूछे हैं, हम लोग बताए हैं। हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को केस उठा लिया जाएगा। हम लोग को खमाता नहीं है केस लड़ने का। हम लोग रोज कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग किसी से प्रतिवाद करके जीत नहीं पाएंगे। हम लोग एक साधारण आदमी है। हम बोले थे उनको पर्सनल मैनेजर को कि सर हमारा केस उठा लीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। मजदूर लोग भी यही बात बोला था, जितना मजदूर था मेरे साथ में सब मजदूर बोला था कि लोकनाथ को या मनोज को केस उठा लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहते हैं। मजदूर भी वही बात बोला था कि केस उठा लीजिए, लोग मारपीट वाला लड़का नहीं है। आज तक हम लोग को मिल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किए हैं। ये पहली बार मेरे साथ हुआ है, वो भी क्या हम रमेश्वर कुशवाहा जी को हम मारे नहीं है, धक्का धक्की हुआ है, मजदूर था वहाँ, उसी में অবশ্যই অবশ্যই আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, নিশ্চয়ই তার বক্তব্য শুনছেন। হুমকি দেওয়া মানে এটা প্রথা, মানে একটা মানে জল ভাত হয়ে গেছে। শ্রমিকরা বলছে যেহেতু গরিব তাদের কোনো মান সম্মান থাকবে না, শ্রমিক তাই তাদের উপরে যা খুশি তাই অত্যাচার করা যাবে। শ্রমিক ক্ষমতা নেই লড়ার, মামলা দিয়ে দাও, হয়রানি করো, জেলে ঢোকাও, প্রতারিত করো, ভাঙবে, শ্রমিকরা ভাঙবে, যাবে কোথায়? আর এই শ্রমিকদের, গরিব শ্রমিকদের এই গরিবীর মানে লাভ নিয়ে তাদের উপরে চরম অত্যাচার চলছে।
এভাবে অত্যাচার চলতে থাকলে মুখ্যমন্ত্রী অন্তত বলেন যে তার বিচার হবে, কোনো শ্রমিকরা বঞ্চিত হবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাদের পাশে দাঁড়াবেন। কোথায়? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন রাখছি, শ্রমিকদের পক্ষ থেকেও আবেদন রাখুন। আপনি দেখুন কিভাবে এই হুকুম চাঁদ জুট মিল অত্যাচার চলছে, কোনো নেতা এসে এদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। তাদের হকের লড়াই তারা নিজেই লড়ছে খিদের মধ্যে থেকেও। আপনারা দেখছেন আপনার খবর, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।